Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, fit and fine, staying safe at your home. Children, we have revised the five chapters in your science. Okay, we have revised the five chapters, and now we are moving to the sixth chapter. And you know that we have discussed the six chapters earlier. Okay, this is the revision going on. Okay, and the name of the sixth chapter is the changes around us. A very important chapter, okay, we have discussed it thoroughly. Those who are new, they can go and watch the previous lectures. Okay, but we know that change is the only permanent thing in our life. Everything around us changes continuously. Can you imagine how our life will be if nothing around changed? Can you think? In this chapter, we'll learn about different type of changes and how the changes affect us. ठीक है? So a very important question is the how the things change. है ना, चीज़ें कैसे चेंज. Suppose that just think about how your classroom looks just before the school begins. Okay, there's no one in the class. Chairs and tables are arranged properly. The blackboard is clean. The windows are closed, and there are no scraps of paper or pencil shaving on the floor. Isn't it? Now think how your classroom looks after the first period is over. Count it in your mind. All the things that look different. Have the chairs and tables shifted a little? Is the floor as clean as it was earlier? Is the blackboard the same? You'll find out. You'll find out the change there. है ना बच्चों? So you can see the changes that have taken place in the room. है ना? So change is the word that has a lot of importance in our life. Everything in our universe, living or non-living, is continuously changing. Okay, ऐसा है कि नहीं बच्चों? And among the non-living things, season change, season बदलते रहते हैं आपके. See, now it's rainy season. The amount of water vapor in air keeps changing. The position of sun and moon in the sky changes. Okay, the level of water in rivers and lakes keep on changing, and so on. Whereas in the living world, plants and animal undergo the changes as they grow. In fact, there are lots of changes happening in a body every single day. But बच्चों, all the changes are not same. सारे के सारे चेंज एक तरह के नहीं होते. Some changes are fast, some changes are slow, some are temporary changes, some are permanent changes. Okay, so in this chapter, let us learn about the different type of changes. Okay, चलो बच्चों. Can all the changes always be reversed? See, आप एक बैलून लो. Okay, just blow it. Okay, and take care that it does not burst. You'll see the shape and size of the balloon have changed. Okay, now let the air escape out the balloon. अब उस एयर को आप बैलून से बाहर निकलने दो. What you'll see, what you'll find. ठीक है, जो बैलून जो पहले था वैसा फिर से हो गया, है ना. Take a piece of paper and fold it as shown in 6.2. What you'll see, you have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. है ना, आपने उससे खेला, you have lots of fun, and then again you have unfolded it. वो फिर से पेपर के रूप में आ गया, है ना. आप टेक सम डो, आप थोड़ा सा डो लीजिए, आटा लीजिए, उससे बॉल बना लीजिए. ट्राई टू रोल आउट द रोटी, है ना. मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन. वो फिर से चेंज हो जाएगा आपके बॉल में. ऐसा है कि नहीं, है ना. आप एक बैलून ले लो. तो आप ये देख रहे हो कि अभी जो भी हम चेंजेस अभी हमने किए, जैसे बैलून लिया, उसमें एयर ब्लो किया और फिर से हमने एयर को बाहर निकाल दिया, बैलून फिर से वैसे हो गया. आपने एक पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, एरोप्लेन बनाया, ठीक है, और खेलने के बाद फिर से आपने अनफोल्ड करके उसको पेपर जैसा था आपने वैसा कर दिया. आपने डो लिया, आपने बॉल बनाई, उसे चपाती बनाई, चपाती की शेप अच्छी नहीं हुई, आपने फिर से उसको बॉल बना दिया. तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, कुछ चेंजेस हमारे ऐसे हो रहे हैं जो हम उसको रिवर्स कर ले रहे हैं, है ना. यू आर रिवर्सिंग सम चेंजेस, है ना. तो सच टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस. यस बच्चों, द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस. ऐसे चेंजेस जिनको आप वापस उनके फॉर्म में वापस ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंजेस, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आपके आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है,
जब वो सॉलिड फॉर्म में थी वो मेल्ट हो जाते, आप उसको कलेक्ट करके आप फिर से फ्रिज में रखोगे, वो फिर से मेल्ट अप हो जाएगी, फिर से वो फ्रीज हो जाएगी, है ना, और फिर से वो सॉलिड आइसक्रीम का रूप ले लेगी। मेल्टिंग ऑफ अ बटर, मेल्टिंग ऑफ अ चॉकलेट, ये सारे के सारे क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एक्टिविटी। अभी जो हमने बैलून लिया था, ठीक है, आपने उसमें एयर ब्लोन किए थे, ठीक है ना, अब उस एयर को फिर से ब्लो करिए और फुल साइज, ठीक है, उसको और ब्लो करते रहिए, ब्लो करते रहिए, ब्लो करते रहिए, ठीक है। उसके बाद जब कम्प्लीटली ब्लो अप हो जाए तो आप उसको टाई अप कर लीजिए और एक पेंसिल के नुक से आप उसको क्या करिए, जैसे आप प्रेस करेंगे वो बर्स्ट हो जाएगा। तो बच्चों जब वो बर्स्ट हो गया तो क्या अब आप जो आपका बैलून पहले था सेम उसी शेप का हो गया या उसी तरह का वो बैलून वापस हुआ? नहीं हुआ, है ना। दूसरा क्या, आप पीस ऑफ पेपर लीजिए, आप उसमें एक एरोप्लेन ड्रॉ कर दीजिए पेंसिल से और फिर उस एरोप्लेन को आप क्या कर लीजिए, सीजर से कट कर लीजिए, ठीक है, उसको बाहर निकाल लीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी में आप क्या करिए, आप रोटी लीजिए, उसको रोल आउट करिए, उससे चपाती बनाइए, ठीक है, डो से, और फिर उसको आप उसको पैन पे रख करके आप उसे क्या करिए, बेक कर लीजिए, उसको रोटी बना लीजिए। तो क्या फिर से आप, अब आप सोचो ये जो 3 एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं, ये 3 एक्टिविटीज़ आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ से डिफरेंट है ना। आप वहाँ पे आप चीज़ों को जो है रिवर्स कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। एक बार रोटी बेक अगर हो गई तो आप फिर से उसको डो में चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने इसको अगर कट कर लिया तो आप फिर से उसको प्लेन पेपर वैसा जैसा था वैसा नहीं बना सकते, है ना। बैलून जो बस्ट हो गया आप उसको दोबारा उस शेप में नहीं ला सकते। तो बच्चों कुछ चेंजेस आपके ऐसे भी होते हैं जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। एंड such type of changes are called what? Irreversible changes. Yes बच्चों, such type of changes which cannot be reversed are called irreversible changes. You are getting my point? ठीक है, now see, could there be other ways to bring a change? Yes, देखिए चेंज लाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। आप चीज़ों को हीट कर सकते हैं, आप उसको कूल कर सकते हैं, है ना। तो उसको हीटिंग से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जब आप चीज़ों को कूल करेंगे तब भी आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। आप ज़रा सोचो कि ये जो आप औजार देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये जो टूल्स देख रहे हैं, ठीक है, जब इनको आपको वुडन हैंडल में फिक्स करना होता है तो आप इनको हीट करते हैं। ये मेटल होते हैं, ठीक है, जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, ये एक्सपैंड होते हैं। व्हाट डू मीन बाय एक्सपैंड बच्चों? ये फैलते हैं, एक्सपेंशन होता है ना। ये एक्सपेंशन सॉलिड लिक्विड गैस 3 चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये एक्सपैंड होते हैं और जैसे ही एक्सपैंड होते हैं आप इनको वुडन फ्रेम, वुडन जो होता है उस पर आप क्या करते हो, उसको आप लगा देते हो, और जब ये कूल होते हैं तो ये टाइटली क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। यानी जब ये कूल होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी सिकुड़ते हैं, और जब ये हीट किया जाता है तो ये क्या होता है, फैलते हैं, एक्सपैंड होते हैं, है ना। देखिए टेबल 6.1 है, यहाँ पे कुछ चेंजेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते, ठीक है। जो हो सकते हैं कैन बी रिवर्स, उसमें आप यस लिखेंगे, जो नहीं हो सकते हैं उसमें आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट इट डाउन द नो। ओके, सो दिस यू हैव टू डू इट टुडे ओनली इन द बुक इटसेल्फ, ठीक है। सम कॉमन चेंजेस हियर, दिस रॉ एग टू बॉइल्ड एग, बट बैटर टू इडली, वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स। तो ये क्या ये सारी चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, वापस होते हैं। जैसे वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ, गीले कपड़े से आपने उसको धूप में डाला वो सूख गए, अब क्या वो सूखे हुए कपड़ों को फिर से आप गीला कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो ये चेंज क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज होगा, है ना। तो इन दिस वे यू कैन डू इट। ये देखिए यहाँ पे जो कार्टव्हील देख रहे हैं ना, ये लकड़ी का, इसके ऊपर आप ये जो मेटल का फ्रेम है ये आप चढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर आप फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स करते हैं, दोनों का देखो, अगर साइज देखो तो सेम है। जब साइज सेम है तो फिक्स कैसे करेंगे, सिंपल है बच्चों, आप ये जो मेटल का रिम है इसको आप हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो ये फैल जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और आप क्या करोगे, इस वुडन कार्ड के ऊपर इस मेटल रिम को क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे, और जैसे ये ठंडा होगा उसको टाइटली क्या कर लेगा, ये पकड़ लेगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारी डेली लाइफ में जो है इसके यूजेस हैं, ठीक है, एक्सपेंशन के। ओके चलो अभी आते हैं स्मॉल, एक छोटी सी एक्टिविटी है। आप एक छोटा सा कैंडल लीजिए, उसकी लेंथ को मेज़र कीजिए स्केल से, ठीक है, एंड नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, ठीक है। आप क्या देखोगे, आप उसको जब जलाओगे, जलाने के बाद आप कैंडल को ब्लो कर दीजिए, बुझा दीजिए, और फिर से उसके लेंथ को मेज़र करिए। आप देखोगे उसकी लेंथ कम हो जाएगी,
है ना। तो क्या ये चेंजेस रिवर्सिबल हैं? हाँ है। अगर उस मोमबत्ती को आप, जो मोम जो पिघली हुई है उसको लेकर के फिर से आप कैंडल बना सकते हो, लेकिन जो उसकी विक जल गई है ना, विक यानी जो उसका धागा है, वो चीज़ जो जल चुकी है उसको, क्योंकि वो जल के राख बन चुकी है, तो उसको आप दोबारा जो है वो चीज़ें आप वापस नहीं पा सकते। तो इसमें फिजिकल और अभी मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो पहले रिवर्सिबल चेंजेस मैंने आपको बताया, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस मैंने एग्जांपल आपको बताया बच्चों। देखो, अगर आप वाटर को पैन में लेके आप हीट करोगे ना, तो जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन मैंने आपको बताया हुआ, वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, यानी लिक्विड आपका गैसेस में चेंज हो जाएगा, है ना। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इवेपोरेशन। जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, अगर उसके ऊपर आप एक पैन लगा दो, एक ढक्कन लगा दो, तो जैसे ही वो उससे टकराएगा ना, वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। कंडेंसेशन याद आया आपको? तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, ये सब के सब क्या है बच्चों, रिवर्सिबल चेंजेस है। दीज ऑल आर व्हाट, रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, नाउ सी, अब हम आते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बच्चों बताता हूँ, ठीक है। लेट्स मूव टू द इरिवर्सिबल चेंजेस। सी बच्चों, मैंने अभी आपको बताया ना कि सम चेंजेस, ओके, द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स, ऐसे चेंजेस जिनको रिवर्स नहीं किया जाता है, और इरिवर्सिबल चेंजेस। बहुत सारे इरिवर्सिबल चेंजेस जो हमारे आसपास होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, फलों का पकना। इस समय मैंगो सीजन चल रहा है, आपने देखा होगा कि बगीचे में कच्चे आम होते हैं, ठीक है, जो अनराइप होते हैं, धीरे धीरे वो पक जाते हैं। तो बच्चों, एक बार जब आम आपका पक चुका है, ठीक है, वो रिपेंड हो चुका है, तो क्या दोबारा आप उसको कच्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो इट इज़ व्हाट, इरिवर्सिबल चेंज, है ना। नाउ इट हैज़ बिकम द मैच्योर्ड वंस। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, एक बार फूल खिल जाता है तो दोबारा जो है अनब्लूम नहीं होता, तो इट इज़ ऑल्सो व्हाट, इरिवर्सिबल चेंज। आपका मिल्क जो है वो फट जाता है, मिल्क गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन नॉट रेफ्रिजरेटेड, particularly in the summer. So this is called what, curdling or souring of milk. This is also an irreversible change, है ना। बर्निंग ऑफ पेपर इज व्हाट, इरिवर्सिबल चेंज है ना। सो कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इरिवर्सिबल चेंजेस। बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। तो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या सीखा, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है बच्चों। देखो, द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस। एक बार फिर से सुनो, द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस। मीन्स ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उस चेंज को हम लोग फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, है ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, टीयरिंग ऑफ पेपर, इसमें कुछ नया नहीं बन रहा है, नथिंग। ग्लास टूट गया तो कुछ नया नहीं बना, है ना। वाटर को फ्रीज किया आपने, आइस बना, ठीक है, बट वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट वही रहा, कुछ भी नया नहीं बना। टीयरिंग ऑफ पेपर के बाद भी कुछ नया नहीं बना, है ना। तो व्हेन नथिंग, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, दे आर कॉल्ड, सच चेंजेस आर कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस। और ऐसे चेंजेस इन विच कुछ नया सब्सटेंसेस बनता रहता है, जिनकी कुछ नई प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड व्हाट, केमिकल चेंजेस। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, है ना, बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेज, या बर्निंग ऑफ पेपर। आप मान लो पहले वो पेपर था, आपने उसको बर्न किया, वो ऐश बन गया, राख बन गया, तो कुछ नया बना ना, है ना। तो दीज ऑल आर व्हाट, और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं। तो ऐसे चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड व्हाट, केमिकल चेंजेस। Cooking of food, burning of substances, they all are the chemical changes as the entirely new substances are formed. Okay, चलो अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें अभी थोड़ा सा मैंने आपको ऊपर हिंट भी दिया था। एक्सपेंशन में क्या होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जब हमको उनको हीट करते हैं तो वो फैल जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं, और जब हम उनको ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, है ना। और इसका हम बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कार्ट व्हील पे कैसे आप फ्रेम को क्या कर सकते हैं, उसको पुटअप कर सकते हैं, उसको चढ़ा सकते हैं, है ना। रेलवे ट्रैक्स बच्चों, जो पैरेलल रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, जिसको आपस में जोड़ा जाता है, उनके बीच में हम लोग गैप्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि
उनको हम लोग एक्सपेंशन गैप बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि गर्मियों में समर सीजन में क्या होता है ना, वो जो रेल ट्रैक्स होते हैं ना मेटल्स की बनी हुई, वो एक्सपैंड करती हैं। तो अगर गैप नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी, वो टेढ़ी हो जाएंगी। इसलिए हम लोग गैप रखते हैं, जिससे अगर गर्मियों में वो एक्सपैंड भी हो तो वो क्या हो जाए, और थोड़ा सा जुड़ जाए, और आपकी जो है जो उसका एक्सपेंशन है वो बना रहे, है ना। लिक्विड को भी एक्सपेंशन होता है। आप एक टम्बलर में, एक ग्लास में वाटर लीजिए पूरा ऊपर तक, ब्रिम तक, ठीक है, और उस वाटर को आप फिर केटल में डालिए, हल्का सा उसको गर्म कीजिए, बॉयल नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा हीट कीजिए, और दोबारा जब आप उसको ग्लास में डालोगे पानी को, तो वो पानी आपको ज़्यादा दिखेगा, है ना। यानी कि वो लिक्विड आपका एक्सपैंड कर गया, फैल गया, है ना। इसी तरीके से गैसेस में भी एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। अगर आप एक बैलून लीजिए, ठीक है, उसमें आप हवा भरिए, ठीक है, और उसके बाद आप धूप में रख दीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि क्या हो जाएगा, उसका साइज धूप में जैसे उस पर ऊपर हीट पड़ेगी ना, उसका साइज बड़ा हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगी गैस। तो दिस ऑल आर अबाउट द एक्सपेंशन, है ना। कूलिंग भी आप कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जब इसका अपोजिट भी होता है, जब आप इनकी कूलिंग करेंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है बच्चों। आप ज़रा सोचो कि जब आप जैम की नई बोतल लाते हो, जैम का जो जार होता है ना, उसकी बोतल जो है जब आप लाते हो ना, तो उसकी जो लिड होती है ना, बहुत ज़्यादा वो अच्छे से बंद होती है, ठीक है। उसको जब आपको हीट करना होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका क्या है, आप उसको हल्का सा जब हीट करोगे ना, ठीक है, मेटल की लिड को, तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है, उसे फैल जाएगी और ईजिली क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो ये कुछ एप्लीकेशन है एक्सपेंशन के, ठीक है, जो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं ना, ठीक है, उनको आप टाइटली हंग नहीं करते, उनको लूज हंग करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम जब कंडीशंस आती हैं ना, तो वो क्या हो जाते हैं, वो टाइट अप हो जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं, है ना। और जब सर्दियों में वो कूल होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, टाइट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम उनको लूज वाइंड अप नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा कि सर्दियों में या विंटर्स में वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के टूट सकते हैं। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, जो हमने इस चैप्टर में देखे हैं और पढ़े हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे जो चेंजेस देखे वो कौन कौन से चेंजेस थे? रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। इसके मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स भी बताए, ठीक है, आपको इनके एप्लीकेशंस भी बताए, ठीक है, और ये बहुत एक्सपेंशन बताया बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन बताया, ठीक है, इनके एग्जांपल्स बताए। और ये बहुत छोटा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको आसपास जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो आप इन चैप्टर के थ्रू जाइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, इवेपोरेशन, एक्सपेंशन, मेल्टिंग, changes. These all are the changes what we have to discuss it on. Okay, so go through this chapter, a very important chapter. I have revised this thoroughly. I hope कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है, तो यू कैन मैसेज मी, ठीक है, एंड आई मेक इट प्रॉपर। ओके बच्चों, तो मिलते हैं विद नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।